हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 10th Maths Part 2, that means Geometries. Last chapter, 7th chapter, Mensuration. From that 7th chapter, Mensuration, we are going to study this problem set 7. From that problem set 7, we are going to study question number 2 to question number 12. So let us see question number 2. Question number 2, what is given? Read that sum carefully because all sums are the statement sums. Then read the sum and try to write the given things. Here, a washing tub is in the shape of frustum. That washing tub का जो shape दिया है, that is the frustum shape. Then height is 21 centimeter. ये जो height है h is equal to 21 centimeter. तो height 21 centimeter. The radii of the circular top and the bottom, ये top का जो radii है that is R1 is equal to 20 centimeter and bottom का radius दिया है R2 is equal to 15 centimeter. Then find the capacity of that tub. Now capacity मतलब volume. Now this tub is nothing but a frustum. So here frustum, in bracket we write water tub. So for that tub, this height h is equal to 21 centimeter. This R1 is equal to 20 centimeter and R2 is equal to 15 centimeter. So these perimeters are given, means measurements are given. We have to find capacity of tub. So capacity of tub is equal to volume of frustum. तो इसका फॉर्मूला जो है 1/3 पाई h इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. So this is the formula for the volume of the frustum, and here pi, value of pi is given. So substitute the value 1/3 into 22/7 into h is given 21. So here 7 1 जा 7 3 जा और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ तक का कैलकुलेशन अपना हो गया. R1 स्क्वायर, R1 is 20, so 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 20 into 15. So we get 22 इंटू ये जो ब्रैकेट है ये हम लोग को सॉल्व करना है अभी. ये 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 15 स्क्वायर इज 225 प्लस इसका प्रोडक्ट करते हैं 15 2 जा 330 एंड एक जीरो यानी 300. सो वी गेट 22 इंटू दिस सम, इसका सम करो 400 प्लस 300 700 और इसमें 225 ऐड किया 925. तो ये मल्टीप्लिकेशन करो. सो वी गेट 22 5 जा 110 एक जीरो 11 22 2 जा 44 प्लस 11 55 उसमें एक 5 और 22 9 जा 198 और 5 is 203. So this is cubic centimeter. We have to convert this into liter. तो 2350 डिवाइडेड cubic centimeter दिया है, तो उसको अगर 1000 से डिवाइड किया, सो डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड किया वी गेट लीटर. सो वी गेट 20.35 लीटर. So this is the capacity of that tub. See question number 3 from this problem set 7. What is given? Some plastic balls. That balls are the sphere. Plastic balls of radius 1 centimeter were melted and cast into the tube. That tube is a cylindrical shape. The thickness of that tube is 2 centimeter. Length of the tube is 90 centimeter and outer radius of that tube is 30 centimeter. Then how many balls were melted to make this tube? यानी वो ट्यूब बनाने के लिए कितना बॉल्स मेल्ट करना पड़ेगा. दैट बॉल इज नथिंग बट स्पीयर.
for sphere, that is for that ball, this radius r is equal to, r is 1 centimeter, उसका रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर. देन फॉर दैट सिलेंडर, दैट ट्यूब इज अ सिलेंडर, दिस ट्यूब, सिलेंडर मतलब ट्यूब, आउटर रेडियस इज गिवन, आउटर रेडियस, it is denoted by r, is 30 centimeter. Thickness of that tube is 2 centimeter and height h is 90 centimeter. Now find the inner radius. So inner radius is equal to this outer radius minus this thickness, यानी 28 centimeter. Let it be R2. Therefore R2 is equal to 28 centimeter. Now we have to find the number of balls to be melted or number of balls to make that tube or that cylinder. Therefore number of balls is equal to वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक, कितना प्लास्टिक है इन ट्यूब और इन सिलेंडर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉल. प्लास्टिक कैसा निकालेंगे अभी, आउटर वॉल्यूम ऑफ ट्यूब minus inner volume of tube divided by volume of ball. तो ball is a sphere and that tube is a cylinder. सिलेंडर के फॉर्मूला है, सिलेंडर के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सो हियर पाई आउटर रेडियस के लिए हम लोगों ने R1, आउटर रेडियस R1 और R2, सो पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला है 4/3 स्फीयर है ये, पाई आर क्यूब. तो फ्रॉम द न्यूमरेटर पाई एच इज कॉमन इनटू ब्रैकेट दिस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय this pi 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा h इज इक्वल टू, इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं अभी वैल्यू, h इज गिवन 90 इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर इज 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस आर क्यूब में मतलब 1 क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय ये जो 4/3 है इसको करते हैं 3/4. सो 90 इंटू हियर 900 माइनस 784 इंटू दिस 3/4. अभी 90 इंटू 900 में से 784 माइनस 116 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 4 2 जा 8 3 4 9 जा. सो वी गेट 90 इंटू 29 इंटू 3. सो दैट इज द नंबर ऑफ बॉल्स. So we get 7830 balls. So we can write the answer here. Therefore 7830 balls are melted to make a tube
वो ट्यूब बनाने के लिए कितना 7830 बॉल्स हम लोग को मेल्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेटल पैरेललोपिपेड ऑफ मेजर्स, पैरेललोपिपेड यानी LBH इज गिवन 16 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। So write the given things for parallelepiped, that is cuboid. Here L is equal to 16 centimeter, B is 11 centimeter and H is 10 centimeter. LBH, that measurements are given. Now that parallelepiped यानी cuboid was melted to make a coins, उसको मेल्ट करके उससे कॉइन बनाया है। Now measurements of the coin, coin मतलब cylinder, how many coins were made if the thickness of the coin, thickness यानी height of that, and diameter of each coin is 2 millimeter, then find that number of coins. So here for that coin is a cylinder, for cylinder in bracket coin, coin के लिए क्या है, radius diameter is given, diameter 2 centimeter, therefore radius is diameter by 2 means 1 centimeter and thickness, that is height of that cylinder H is equal to 0.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया उसको। Therefore नंबर ऑफ कॉइन्स, कोई भी अगर एक फिगर हम लोग मेल्ट करते हैं और दूसरा बनाते हैं कभी भी, देन नंबर अगर हम लोग निकालना है तो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट फिगर, जो फिगर हम लोग को दिया था, डिवाइडेड बाय ये जो बनाया है उसका एक का वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ कॉइन्स is equal to volume of parallelepiped divided by volume of one coin, एक कॉइन का वॉल्यूम क्या आएगा। तो पैरेललोपिपेड के लिए फॉर्मूला है L इंटू B इंटू H, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पैरेललोपिपेड। और ये हो गया सिलेंडर, सिलेंडर के लिए है पाई आर स्क्वायर H। तो यहां पे हम लोग इसका भी H दिए तो इसको H1 बोलते हैं, H1 पाई आर स्क्वायर H1। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। लेंथ इज 16 इंटू ब्रेथ इज 11 इंटू 10 एंड पाई 22/7 into r square, r square is 1 into 1 means 1 into 1 into h is 0.2, 0.2. Now simplify this one, we get 16 into 11 into 10 divided by 16 into 11 into 10 into 22 into this 0.2, 22 टू ज़ा 44, 44 में एक डेसिमल यानी 4.4 डिवाइडेड बाई 7, सो वी गेट 16 इंटू 11 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय दिस 4.4। तो इसको सिंप्लीफाई करना है अभी हम लोगों को। तो 4 से यहाँ पे 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 11 से कर दिया। उसके बाद ये जो 4 है इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। 116 इंटू 10 को मैं 100 बना देता हूँ इंटू 7, एक डेसिमल राइट में चले गए हम लोग, ये भी 4 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, सो वी गेट 7 4 ज़ा 28 इंटू 100 यानी 2800 कॉइन्स। तो कितना कॉइन बनेगा, 2800 कॉइन्स उसमें बना सकते हैं हम लोग अगर वो पैरेललोपिपेड मेल्ट किया तो। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट 7। उसमें क्या दिया है वो पहले रीड करो और उसका गिवन यानी डेटा जो है वो लिखो।
द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ रोलर इज 120 सेंटीमीटर, डायमीटर 120 सेंटीमीटर दिए एंड लेंथ मतलब हाइट फॉर दैट सिलेंडर इट इज 84 सेंटीमीटर. टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशन ऑफ द रोलर आर रिक्वायर्ड. 200 rotations are required. Find the expenditure to level the ground at the rate of 10 per square meter. तो इसका पहले मीटर में कन्वर्शन हम लोग को करना पड़ेगा. सो हियर लेंथ फॉर ये रोलर जो है इट इज सिलिंड्रिकल. फॉर सिलेंडर दैट मीन्स रोलर. For roller means for cylinder, this diameter is given. Diameter of that roller D is equal to 120 centimeter. Therefore R is equal to 60 centimeter. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.6 मीटर. 60 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम लोग करते हैं तो 0.6 मीटर. और हाइट ऑफ दैट सिलेंडर, हाइट इज इक्वल टू हियर लेंथ ऑफ दैट रोलर दैट इज H इज गिवन 84 सेंटीमीटर. 84 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कर दो 0.84 मीटर. ये मीटर में कर दिया क्योंकि अपना जो रेट दिया है, रेट इज गिवन इन ₹10 पर स्क्वायर मीटर. नाउ अगर हम लोग कोई रोलर कंसिडर करते हैं, सो रोलर व्हेन इट टेक्स वन रोटेशन, एक रोटेशन अगर रोलर कंप्लीट करता है, देन द एरिया इज लेवल और प्रेस बाय दैट इज इक्वल टू इट्स कर्व सरफेस एरिया. सो हियर एरिया ऑफ द ग्राउंड, पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ द ग्राउंड लेवल्ड बाय रोलर is equal to curve surface area of roller multiplied by number of rotations. तो कितना एरिया उसने लेवल किया वो कैसे निकालते हैं, कितना एरिया उसने लेवलिंग किया है. तो कर्व सरफेस एरिया को हम लोग अगर नंबर ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दैट आंसर. तो इक्वल्स यहां पे लिखते हैं. कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है 2πRH मल्टीप्लाइड बाय दिस 200, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशंस हम लोग को दिया है 200 रोटेशंस. सो 2 into 22 upon 7 into R is 0.6 meter into this H is equal to 0.84 meter, 0.84 meter multiplied by this 200. So here 7 ones are 7 zeros are 7 12s are. So we get 12 sevens are 84, मतलब ये 12 कैंसिल हो गया यहाँ पे. तो we get 22 2s are 44 मल्टीप्लाइड बाय ये 0.6 मल्टीप्लाइड बाय ये 200 है. तो इसको 12, ये 2 जीरो हम लोग कैंसिल करते हैं, उसको 12 कर देते हैं. 12 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो वी गेट 44 इंटू द 12 2s are 24 इंटू 0.6. दिस इज द एरिया. इसको कैलकुलेट नहीं करते, स्क्वायर मीटर. इतना एरिया हम लोगों ने क्या किया है, लेवल किया है. तो अभी खर्चा कैसे निकालेंगे, देखो एक्सपेंडिचर. देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड, उसको लेवलिंग करने के लिए जो खर्चा आएगा कैसा निकलते हैं, एरिया
जितना उसने मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो एरिया कितना आया देखो, यहां पे हम लोगों ने लिखा है 44, क्योंकि डबल डबल कैलकुलेशन करने से अच्छा बाद में करेंगे। 44 इंटू 24, 44 इंटू 24 इंटू द 0.6 इंटू रेट है 10 रुपीज पर, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा। ये 44 इंटू 24 इंटू 6, बिकॉज 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 0.6 इज 6। इसका मल्टीप्लीकेशन अभी करो। So rupees 6,336, that is the expenditure for leveling the ground. We required this amount. So the expenditure of leveling the ground is 6,336. So in this way, in fifth sum, we get the expenditure of leveling the ground. Now let us see question number 6 from this problem set 7. इसमें क्या दिया है देखो, the diameter and thickness of hollow metal spheres. Hollow metal sphere is there. The diameter is given. Diameter of the metal sphere is 12 centimeter and thickness is 0.01 meter respectively. The density of metal is 8.88 gram per cubic centimeter. Find the outer surface area and mass of the sphere. Outer surface area and mass of the sphere. Here first thing we have to find outer surface area. So what is given? Outer radius is given, outer diameter, outer radius r is equal to diameter 12 दिया, divided by 2 किया तो 6 सेंटीमीटर, and therefore outer surface area of that sphere 4 pi r square. 4 multiplied by 22 upon 7 into r square is 6 into 6. So we get 4 into 22 by 7 into this 36. So 22 into this, इसका अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते 144 divided by this, then this multiplication is 3168 divided by 7, that is the square centimeter. This is the outer area. We have to find what mass of that. Density is given. We have the formula. Density is equal to, एक formula अपने पास है density का, फिजिक्स में सीखे हम लोग। Density is equal to mass divided by volume. तो mass क्या आएगा? Mass is equal to density multiplied by volume. तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा अभी? Volume, because density is there. Density दी है तो volume अभी निकालना पड़ेगा। तो volume का फॉर्मूला क्या है हम लोग को पता है, volume is equal to 4/3 pi r cube। लेकिन इसको hollow, it is a hollow sphere. Hollow sphere यानी outer inner माइनस करके हम लोग को volume निकाल। So if we divide here 7 4s 28, 36, then 7 5s 35, 1 18, 7 2s 14, 4, then 7 5s 35, 7 7s 49, यानी दिस इज द फाइनल आंसर। ये यहाँ पे हम लोग को मिलेगा आफ्टर डिवीजन। नाउ वी हैव टू फाइंड द मास। मास फाइंड करने के लिए क्या करना है, अभी देखो हम लोग को पहले वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या, आउटर रेडियस इज 6 एंड थिकनेस दिया है 0.01 मीटर। थिकनेस ऑफ स्फीयर, उसका थिकनेस दिया है 0.01 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर में कितना है 100 सेंटीमीटर, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये इसका थिकनेस हो गया। देयरफॉर इनर रेडियस निकालते हैं। इनर रेडियस या आउटर रेडियस ऊपर लिखा है हम लोगों ने, इनर रेडियस इज इक्वल टू आउटर रेडियस यानी 6 माइनस 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ
sphere is equal to outer volume minus inner volume, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला 4/3, इसको हम लोग यहाँ पे R लिया तो इसको R1 लेते हैं, R1 इज इक्वल टू, बिकॉज बोथ आर R। सो यार 4/3 पाई R क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब। 4/3 pi is common, so here R cube minus R1 cube, so 4/3 into 22/7, इसका वैल्यू दिया है क्या? नहीं, into इसका 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, so here 4/3 into 22/7 into x क्यूब आता है 216 माइनस 5 क्यूब इज 125। तो ये आंसर निकालो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू दिस डिफरेंस इज 91। सो यार 7 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 13 7 सा, सो वी गेट 4 इंटू 22 इंटू 13 and divided by this 3. This product is 1144 divided by 3. इसको डिवाइड करो 3 से, 3 3 जा 9, बचा कितना 2, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये तो कंटिन्यू चालू रहेगा, यानी 381.33। सो हियर दिस इज द वॉल्यूम, ये 3 यहाँ पे है, डिवाइड बाय, ये हो गया अपना, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम हो गया V। तो वॉल्यूम से मुझे क्या निकालना है, क्या चाहिए, मास। देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला अपना। तो डेंसिटी दिया है 8.88 इंटू, ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ही दिया है, इंटू 1144 डिवाइडेड बाय दिस 3, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, बचा कितना 2, 28 हो गया, 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18, यानी 2.96 multiplied by 1144. After multiplication we get 3386.24, that is the gram. Now let us see question number 7. Read that question first. क्या दिया है? A cylindrical bucket of diameter 28 centimeter and height 20 centimeter was full of sand. एक cylindrical bucket है जिसका मेजरमेंट हम लोग को दिया है। सो फर्स्ट वी राइट फॉर सिलेंडर, डायग्राम भी आप लोग निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसा। फॉर सिलेंडर दैट मीन्स फॉर बकेट, सिलेंडर मतलब बकेट। व्हाट इज गिवन, डायमीटर D इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर रेडियस R इज इक्वल टू इसका हाफ यानी 14 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज, और हाइट H1 डायमीटर, रेडियस R1 लेते हैं, R1 डायमीटर, हाइट H1 दैट इज 20 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन। नाउ इट इज फुल ऑफ सैंड, ये जो है ये बकेट पूरा सैंड से भरा हुआ है। व्हेन द सैंड इन द बकेट वॉज पोवर्ड ऑन द ग्राउंड, अगर अब हम लोग उसको ग्राउंड पे डालते हैं, देन द सैंड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ शेप ऑफ कोन, उसका एक कोन शेप हो जाएगा ऐसा। द हाइट ऑफ दैट कोन वॉज 14 सेंटीमीटर। फॉर कोन हाइट इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ दैट कोन। तो फॉर कोन उसका भी मेजरमेंट हम लोग लिख सकते हैं, फॉर कोन हियर रेडियस
जो हम लोग को फाइंड करना है, इट इज R2 एंड हाइट इज गिवन, that is H2, height is 14 centimeter. So here the volume of the sand in the bucket, यानी volume of the cylinder is equal to volume of that cone. ये दोनों इक्वल बता के हम लोग को ये निकालना है. So volume of bucket, because it is full of sand, is equal to volume ऑफ कोन. यहां पे हम लोग सिलेंडर लिखते हैं डायरेक्ट, बकेट मतलब अपने लिए ये सिलेंडर है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. टू फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ दैट कोन. एरिया ऑफ बेस मतलब पाई R2 स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे चाहिए, पाई R2 स्क्वायर. सो वी गेट पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पाई R1 स्क्वायर H1 इनटू ये 1/3 है तो 3 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड इनटू दिस H2 है 1/H2 हो जाएगा. समझ में आया? We have to find the area of base of that cone. area of base क्या आएगा उसका? पाई R2 स्क्वायर, ये है तो इसको सिंप्लीफाई मत करो, ऐसा ही रखो. पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस. तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, यानी डायरेक्टली वी गेट एरिया. अगर रेडियस निकालते बैठेंगे तो 22/7. ये कैसा आया? पाई R1 स्क्वायर H1 इंटू ये 1/3 तो ये बन गया 3, ये H2 है तो 1/H2 इंटू R1 स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 इंटू H1 यानी 23 एंड 1/14. ये 14 कैंसिल हो गया, ये 14 कैंसिल हो गया. सो वी गेट 22/7 इंटू दिस 14, 7 1 जा 7 2 जा 14 इंटू 20 इंटू 3. So we get 22 2 जा 44 into 20 into 3. So 44 into 60 ये जो है that is our answer. तो 44 into 60 करो. So here 0, 6 4 जा 24, ये 2 आ गया, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, और ये हो गया अपना एरिया ऑफ बेस क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ बेस. राइट द आंसर. द एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल्स 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इन दिस वे वी गेट द एरिया ऑफ बेस ऑफ दैट कोन इन क्वेश्चन नंबर 7. Now let us see question number 9 from problem set 7. ये question number 9 में क्या दिया है मुझे देखो. The area of sector of a sector of circle of radius 6 centimeter. यानी radius of circle R is 6 centimeter and what is given? Area of sector. ये दो चीज मुझे दिया है, इज इक्वल टू 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. बोथ आर गिवन. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड? देन टू फाइंड, एक है मेजर ऑफ आर्क दैट इज थीटा एंड सेकेंड लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल. Now first we have to find theta. So write the formula for area of sector. So here first point, area of sector is equal to 15 pi. ये दिया है मुझे, उसका फॉर्मूला लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 पाई. ये दोनों साइड का पाई पाई कैंसिल हो गया. थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर मतलब 36, आर इज 6
इज इक्वल टू 15, तो 36 1 जा 36 10 जा, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ये 15 और मल्टीप्लाइड बाय दिस 10, theta is equal to 150 degree. So we can write our answer, measure of arc is equal to 150 degree. ये फर्स्ट आंसर हो गया. सेकेंड आंसर मुझे क्या चाहिए? लेंथ ऑफ आर्क. अपने पास एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ सेक्टर दिया है और रेडियस दिया है, तो अपने पास फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन दिस एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क. सो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस एंड डिवाइडेड बाय 2. सो वी गेट ए, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, 15 पाई is equal to length of arc is L into radius is 6 divided by 2. ये डिवाइड करते हैं पहले. So 15 pi as it is equal to L into this 3. 2 1 जा 2 3 जा. Therefore L is equal to this 15 pi divided by this 3. तो L is equal to 3 1 जा 3 5 जा 5 pi centimeter. That means length of arc is equal to 5 pi centimeter. So in this way, in ninth sum, we get both the answer, measure of arc and length of arc. Let us see question number 11 from problem set 7. In this question, this figure is given. If you observe that figure, this ABCD is a square and this C dash BXD is one of the sector, and A dash PCD this another sector. We have to find the area of shaded region. This is activity based question, so I have written all the answer and we have to fill up this one. So in question paper we will get the answer and we have to complete, means fill in the blanks only, boxes. तो side of the square ABCD, ये जो ABCD है स्क्वायर, इसका साइड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेक्टर सी डैश बी एक्स डी. सी डैश बी एक्स डी का रेडियस क्या आएगा? BC. और ये क्या दिया है हम लोग को क्वेश्चन में? सी रेडियस ऑफ दैट सी डैश बी एक्स डी इज 20 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर हियर वी गेट 20 सेंटीमीटर. नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया आएगा साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर मतलब 400. सो वी गेट area of the square is 400. Now we have to find area of the shaded region. मतलब ये एरिया, ये जो एरिया है ये निकालना है मुझे अभी, ये इतना. So area of the shaded region inside the square, ये स्क्वायर के अंदर जो shaded region है मतलब इतना एरिया, ये जो अभी यहाँ पे दिखाया हो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. ये स्क्वायर में से अगर ये सेक्टर हम लोग माइनस कर देते हैं, सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है अपना? साइड स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लिखा मैं, साइड स्क्वायर. सो माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा दोनों. साइड स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 90 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 400. यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्टली आंसर इज गिवन, नो नीड टू सिंप्लीफाई. तो 20 स्क्वायर इज 400 और 400 में से ये हम लोग अगर माइनस करते हैं then we get 86. So 86 square centimeter is the area of the shaded region, this shaded region. अभी total shaded region हम लोग को चाहिए, तो पहले क्या निकालना है? ये दोनों का एरिया निकालना है. So radius of the bigger sector, ये बड़ा जो सेक्टर है इसका रेडियस कितना है? ये डायगोनल देखो, ये अगर हम लोग यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये दिस इज द रेडियस, दिस इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या आएगा? साइड उसका 20 दिया है तो डायगोनल आ गया 20√2. नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर, यानी ये और ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए डैश पी सी डी, उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दिया. तो ये हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला सेक्टर का, और यहाँ पे साइड स्क्वायर. तो
यहाँ पे वैल्यू डाला 90/360 इंटू 3.14 इंटू 20√2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। अभी दोनों मुझे वैल्यू निकालना है। ये 20 स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया 400 डायरेक्टली, एंड इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो रफ वर्क में हम लोग कर सकते हैं। देखो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे 90/360 इंटू दिस 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करते हैं। अभी 20 का स्क्वायर आ गया 400 और √2 का हो गया 2, तो 400 इंटू 2 800, ये आ गया 800। अभी ये कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 4 जा और 4 1 जा 4, 2 जा 8 यानी 200। ये जो 200 है इसको क्या करता हूँ मैं, ये 2 0 कैंसिल करेंगे, इसको 314 इंटू 2 यानी हो गया 628। तो यहाँ पे क्या आया अपना 628। ये समझो यहाँ से, ये 200 मतलब क्या 2 इंटू 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 314 हो गया। 628 मतलब माइनस दिस 400 वी गेट 228। एंड फाइनल आंसर हम लोग को लिखना है टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इट इज ऑलरेडी गिवन हियर, नो नीड। द टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू सम ऑफ दिस, यानी 86 टोटल shaded area of shaded region, area of shaded region, it is already given in the book, no need to fill up। 86 plus this 228 and उसका sum भी दिया है 314 square centimeter। So in this way we can complete this activity in question number 11। Now let us see question number 12 from problem set 7। This figure is given। In this figure, two circles with center O, bigger circle having center O and smaller circle having center P, internally touches at point A, and some information is given, BQ 9 दिया है और DE 5 दिया है। Then find the radii of both the circles। Here it is also the activity based question, we have to complete this activity। So read that activity and write according to that। So let the radius of bigger circle R and smaller circle be small r। So let the radius of bigger circle का radius हम लोग लेते हैं bigger circle be R and smaller circle small r। This is already given in the textbook। OA, OB, OC, OD are the radii of the bigger circle। देखो OA, OB, OC, OD all are the radii। OA, OB, OC and OD are radii of bigger circle। बड़े सर्कल का ये रेडियस है सब, and therefore this OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, all are capital R because we consider, we take the radius of that bigger circle R। Now what is given, PQ smaller circle, देखो ये smaller circle का center है P, PQ equals PA is equal to radius of the smaller circle, that is PQ equals PA is the radius of the smaller circle, that is small r। OQ मुझे फाइंड करना है अभी। OQ is equal to, ये देखो यहाँ पे ये OB है, या OB में से अगर मैं BQ माइनस करता हूँ तो OQ आएगा, तो वी गेट OQ is equal to OB माइनस दिस BQ, OB माइनस BQ। सो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा देखो, अभी OB इज R, देखो OB इज R एंड माइनस BQ इज 9, तो R माइनस 9, ये फर्स्ट बॉक्स अपना आ गया R माइनस 9। सिमिलरली ऑन नेक्स्ट पॉइंट दिस OE मुझे निकालना है, तो क्या OD में से अगर DE माइनस करते हैं तो OE इक्वल्स OD माइनस DE इज इक्वल टू, तो ये जो OD है दैट इज अगेन द रेडियस
और DE मुझे दिया है 5, सो R -5। ये सेकेंड बॉक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया, सेकेंड फिल अप कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रीड करते जाओ लिखते जाओ, रीड करते जाओ लिखते जाओ। एज द कॉर्ड्स QA and this EF, these are the chords of the smaller circle. Smaller circle के लिए EF and QA chords है and intersect each other in the interior of circle। तो उसका जो फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन ऑफ टू chords वो यहाँ पे यूज किया है। Here chords QA and chord EF of smaller circle intersect in the interior of circle। अगर इंटीरियर में सर्कल के वो एक दूसरे को डिवाइड करता है तो वी गेट दिस OQ into OA is equal to OE into OF। so we get OQ into OA, OQ into OA is equal to OE into OF। so that is given। से OE OF इक्वल आएगा बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो हियर ऑलरेडी गिवन इन दैट बुक, सब्सटीट्यूट द वैल्यू नाउ। ये OQ का वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो R -9 ये बॉक्स हो गया, इनटू OA इज R, into this is given R is equal to OE का वैल्यू है R -5, यहां पे भी बॉक्स है, into this one OF, और यहां पे दिया है मुझे कि OE इक्वल्स OF, ये दोनों इक्वल है तो मैं दोनों का वैल्यू सेम ही डालूंगा अभी। So we get R -5 and R -5। Now open the brackets, ये R square -9R लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये A square -10R + 25, ये इक्वेशन हम लोग को दिया है। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, therefore this R square get cancelled, so we get -9R ये +10R, R हो गया, R इज इक्वल टू 25, ये यहाँ पे बॉक्स है, R इज इक्वल टू 25। सो वी गेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल दैट इज 25। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। आगे दिया है AQ इज इक्वल टू 2R, AQ इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू AB माइनस BQ। AQ कैसा मिलेगा, AB में से अगर मैं BQ माइनस करता हूं तो मुझे AQ मिलेगा, एंड AQ इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो ये मुझे निकालना है AB यानी ट्वाइस द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का रेडियस 25 है, तो वहां पे क्या आएगा 50। सो 2R इज इक्वल टू 50 माइनस BQ का वैल्यू दिया 9, सो 2R इज इक्वल टू दिस इज 41, ये 41 आ गया, एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू, तो 2R इज इक्वल टू 41, तो R क्या आएगा 41 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20.5 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे हियर 25। So in this way we get the radius of the smaller circle as well as radius of the larger circle in question number 12. So friends, here the problem set 7 is completed. If you have any doubt in mensuration or problem set, then you can write in the comment box. I will definitely clear your doubt. If you like the video, please like and don't forget to subscribe the channel so you will get the upcoming videos, new videos.
and share these videos to your friends. Thank you.